Assalamu alaikum. Today I'm with a young actress who I'm very fond of. She has a number of very famous projects to her credit और उसमें फिल्म और टीवी दोनों शामिल हैं. अनकरीब इनकी फिल्म आ रही है जिसका नाम है चिक्कर. तो हम बेसिकली उसकी वजह से मिल रहे हैं but there's always so much more to ask her whenever I meet her. Now Chikkar from the trailer looks really interesting. It's a fight between good and evil. But I think even in real life, Ushna Shah has always stood for what she thinks is good and gone against what she feels is evil. It's something I've admired about her, and I think the world admires her for it. So in Chikkar, we'll be seeing Ushna going against evil, probably, and in real life, she's doing quite the same. So let's talk to her about all that. How are you, Ushna? I'm good. How are you? Thank you for that wonderful introduction. It's true. As always. Chikkar is about good versus evil, right? Trailer से तो यही लगता है. Yes, it is. It is. हाँ. अच्छा. And is it about how pivotal are you to the story? क्योंकि ज़ाहिर है एक policeman की कहानी है. तो I'll be really honest. It is Usman's story. It does sort of circle around him, but every character is pivotal. That's why we have such strong actors for every single role in it. Cast बहुत the strong cast is very, very strong. I was very blessed to be able to work with such fine actors, Usman included, of course. And it's a crime thriller. And ये इस तरह की फिल्म है जो हर कोई enjoy करेगा. ये आपकी masses भी enjoy करेंगे क्योंकि ये बहुत relatable है और इसमें humor भी है. Dark humor है, slapstick humor नहीं है. बड़ा subtle, sarcastic, तंजिया, थोड़ा dark humor है, but बहुत funny है. Dark situations के अंदर funny है. इसमें हल्का फुल्का सा romance है, but it's not really about the romance, I wouldn't say. इसमें corruption भी थोड़ी बहुत दिखाई है. इसमें हमने जो cultural clashes होते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ classes के वो भी दिखाए हैं. तो ये घुल मिला के एक चिक्कड़ है. Have you seen the movie? I've seen most of it. I've seen the one just before the final draft. अच्छा. Yes. अच्छा, and you feel के I'm very excited about You're it. excited about I feel like this is one of those bodies of work that I'm going to be proud of because it stands for something. ये एक social commentary भी है, ये entertaining भी है, ये again like I said सबके लिए है. तो आपके intellectuals भी बहुत enjoy करेंगे और आपकी masses भी बहुत enjoy करेंगी. आपको एक full family entertainer भी मिल जाता है इसमें और आपको. देखिए ट्रेलर तो बहुत promising लग रहा है. Trailer promising है Different ये. लग रहा है और cast इतनी exciting है कि Cast exciting all है. these people. Yes. You know, we have Salim Miraj and Ali Sheikh and Nausheen and we have some newcomers from Ajoka. They're just fantastic. And then of course we have Usman and then we have Faryal Mahmood and so we have little old me. You also have Adnan Shah Tipu. We have Another Tipu huge Bhai. Oh my name. God, how did I forget Tipu Bhai? Of course we have Adnan Shah and Tipu Bhai and he was fantastic in it. So we have just the best cast and I'm just very और बल्कि इसकी जो screening हुई है सेंसर बोर्ड वगैरह में उसमें standing ovation मिली है और लोगों ने cast की performance की बहुत तारीफ की. क्या usually ऐसे होता है कि जब मूवी आने वाली होती है तो standing ovation भी मिलती है और सब तारीफ कर रहे होते हैं? क्या ये होता है अमूमन? मलिहा मैं तो एक तो वहाँ नहीं थी उस मीटिंग में जो मुझे समझ आया उसमें standing ovation थी लेकिन आपने शायद नोट किया मैंने ज़्यादा फिल्में की नहीं. हाँ, तो मुझे पता नहीं लेकिन आपने स्क्रीनिंग्स तो अटेंड की होंगी ना मैंने ज़्यादा स्क्रीनिंग्स भी नहीं अटेंड की. नहीं की मैंने नहीं ज़्यादा स्क्रीनिंग्स अटेंड की. बहुत कम अटेंड की है मैंने. कुछ की हैं और वो अच्छी ही की हैं but I haven't really gone to that many. When you work in a project, when you're working in a project or when it's getting wrapped up, चाहे वो ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, क्या आपको पता चल जाता है कि ये अच्छा है या ये बहुत बकवास है? अंदाज़ा हो जाता है. हाँ. ये बहुत अच्छी है ये क्योंकि ये अगर अंदाजा हो जाता है तो फिर अच्छी बात. फिर अच्छी अंदाज़ा हो जाता है. ये जो फिल्म है ये डेब्यू है ज़हीरुद्दीन का. सैयद ज़हीरुद्दीन ही इज़ वो ज़्यादा सामने नहीं आते बट जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. वो बहुत कंटेंट बेस्ड एड्स लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं. ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर एड डायरेक्टर एंड उनकी जो नीश है जैसे हर एक की एक नीश होती है. यू नो कोई ग्लैम बहुत अच्छा शूट करते हैं, कोई लव स्टोरी बहुत अच्छी शूट करेंगे, कोई एक्शन बहुत अच्छा करेंगे, कॉमेडी अच्छी करेंगे. ज़हीर भाई की जो नीश है जो उनके एड्स में ख़ास तौर पे नज़र आती है वो है सोशल कॉमेंटरी और कंटेंट और वो है रियलिज्म. ही इज़ वेरी रियलिस्टिक. इस फिल्म में भी कोई मेकअप में नहीं आप मुझे देखेंगी. आई डोंट सिवाय एक सीन के जो मैंने लड़के उनसे कहा और वो था भी इवेंट सीन थैंक गॉड कि मुझे कहीं अच्छा लगने दें. बट इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक एंड ही फोकसेस ऑन द रियलिटीज़ ऑफ स्पेशली आवर कंट्री
एंड उनकी एक्टिंग और नुआंसेस भी जो निकालना चाहते हैं वो बहुत बहुत रियलिस्टिक हैं एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही स्टैंड्स आउट और उनकी ही इज़ वेरी विटी ही इज़ वेरी sardoनिक वो जो एक इंटेलिजेंट कॉमेडी होती है ना जो निकाल लेते हैं सिचुएशंस में जो कॉमेडी होनी नहीं चाहिए सो उस लिहाज से ये एक बहुत पढ़ा लिखा प्रोजेक्ट है एंड आई वाज रियली एक्साइटेड और उनकी डेब्यू फिल्म है तो आई थिंक इंडस्ट्री के जो खास तौर पे लोग उन्हें जानते हैं दे आर वेरी एक्साइटेड सो मैंने बहुत होप्स रखी हैं और अगर सही ना गई तो देन आई एम गोना बी वेरी अपसेट विद हिम बिकॉज मैंने बहुत होप्स रखी हैं इसलिए हम सब ने उन पे प्रेशर बहुत है And is there a difference between film and TV? I know you've done a little bit of film and lots of TV. Lots and lots of I've TV. barely done any film. Huh. I've done a lot. TV. I've done too much TV. I have TV coming out of my ears. Is there a difference? Yes, there's a difference. Film is a much smaller. In the storylines or yeah, film. This film especially is a story of 8 days. Also performance-wise, क्या ज़्यादा space होती है? नहीं. So film में like ad में for example आपको बहुत कुछ within seconds डालना होता है. ड्रामे में आपको बहुत कम, बहुत ज़्यादा में खींचना होता है. Which I really don't like to do Which anymore. but you do it quite well. But I do it. I try to not to do it too much. But again, ड्रामे में आपको थोड़ा emotion ज़्यादा खींचना पड़ता है क्योंकि आपको टाइम बढ़ाना पड़ता है और हर चीज़ रिपीटेड होती है. फिल्म में आपको बहुत सारा कुछ एक छोटे छोटे स्लॉट्स और फिल्म उस सेंस में थोड़ी और रियलिस्टिक होती है बिकॉज रियल लाइफ में भी आप एक चीज़ को एक इमोशन को 10 दिन नहीं खींचते हैं unless it's special circumstance. So film में you're it's a little more realistic and fast paced in that sense. And it's fun. It was really, really fun. And मेरे सारे scenes तकरीबन उस्मान के साथ थे. Where did you shoot it? Lahore predominantly, yeah. Okay. We shot it all in Lahore, balke. And so my scenes were with Usman Mukhtar. And I don't think anyone else could have played this character better than he did. Really? Oh my God. I think this will be one of his finest performances that anyone has seen. And I think a lot of people, men and women, will fall in love with him if they're not already. He's done such a fantastic job. Achha. He's done a great job. Is it important to promote a movie? Is it important ये जो interviews आप लोग जो थक जाते हैं interviews करते हैं, appearances होती हैं, हर दिन तैयार होना, wardrobe sort out. Yeah, well, this is day one of my promotions. So I should ask you this I'm a week later. I'm enjoying it. I'm enjoying it because it's also, so in every interview that I do, I get asked, when is your film coming out? So like you've asked me this, like when are we seeing you on the big screen? And everybody asks me that. So I can finally save some izzat and say it's coming out. Like मैंने भी film की है, मेरी भी देख ले फिर. So yeah, I'm happy to promote it because I'm also proud of it. So Ushna, film excites you more than drama? Absolutely. Or does it depend on the story? Doesn't everything you haven't done before excite you more? I mean, I've done one film that rarely anybody saw. You're not going to find it anywhere. It was like 10 years ago. You did. And that was what, like 7 years ago, 5 years? I don't even know how long ago. Like a while 2015, 16, I don't even know. So it's like I haven't experienced having a film out and I haven't experienced screenings for myself and I haven't experienced that. I mean, it's not a huge budget film. It's a family entertainer. ये फिल्म है सबके लिए. ये फिल्म है फैमिली एंटरटेनर ये उस सेंस में लेकिन इसमें गाने वगैरह नहीं हैं. सो ये है उस सेंस में एक कॉम्पैक्ट फिल्म, एक छोटी फिल्म. और सो मैंने वो ग्रैंड प्रीमियर्स अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए जो लोगों के होते हैं, लेकिन मेरे लिए एक रिस्पेक्टेबल बॉडी ऑफ वर्क जिससे मैं फ़ख्र करती हूँ उसको प्रेजेंट करना और बड़ी स्क्रीन पे देखना मेरे लिए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है फाइनली. And I hope it does well. Finally, inshallah. ताकि और opportunities आएं. Inshallah. And even if not, मलिया आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी होती है और उसमें आप कभी कभी रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरा ऐसा काम जिस पे मैं फ़ख्र करूं. और ड्रामों में इस तरह का काम है मेरे पास काफ़ी सारा. कुछ ड्रामे हैं जिन पे मैं बहुत फ़ख्र करती हूँ कुछ, बट काफ़ी सारे एक्चुअली. बट फिल्म मेरे पास अभी तक नहीं थी और मैं चाहती हूँ कि जब मुझसे लोग पूछें कि आप कोई अपना अच्छा काम बताओ जो हम देखें, जो अक्सर लोग पूछते हैं, तो अब मेरे पास ये एक चीज़ है जो एक बड़े ज़रूरी सब्जेक्ट पे बात कर रही है और जो एंटरटेनिंग भी है. तो अगर ये बहुत बड़ी हिट ना भी हो तो आई एम हैप्पी दैट आई हैव दैट इन माय बैग, यू नो. You have that. I have that. To be proud of, to look back on. Alhamdulillah. And you don't mind the fact कि
अब ये फिल्म थी थोड़ी रियलिस्टिक थी तो थोड़ी ग्रिटी थी, हेयर एंड मेकअप पे जोर नहीं था जो अक्सर करने ड्रामों नहीं में दिया, होता है। करने नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। एक Okay. सीन में जूड़ा बांध के आधी फिल्म अब की जब है, मैं मूवी पोनी करके देखूंगी अपने मुझे जिम पता क्लोथ्स चले। पहने हैं इस फिल्म में। सोचें, उन्होंने कहा था मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखाना, पोस्टर में भी मेरे मुंह पे उन्होंने पानी स्प्रे किया कि लगे कि तुम क्रिकेट प्रैक्टिस से आई हो, और साथ फरियाद महमूद जो ऑलरेडी इतनी हसीन है, उन्होंने वो खतरनाक आंखें बनाई हुई बिकॉज शी इज गॉट हर रोल इज सच एंड शी इज़ वेरी गुड विद मेकअप एंड स्टफ एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्यूटिफुल। सो उनको उन्होंने फुल ग्लैम, मेरे साथ एक हसीन फरियाल और एक हसीन ग्रीन आइड नौशीन शाह, और मैं इधर पसीने में भीगी हुई उष्णा, नो लिपस्टिक नथिंग, गुस्से में देख रही हूँ। But it did not matter. You were cool with that? I had no choice, but I was cool with it. Yeah, I was chilling. हाँ ठीक है। Yeah. आई थिंक ड्रामों में यूजुअली क्योंकि आप जो रूल्स होते हैं पाकिस्तानी घरेलू लड़की के या गर्ल नेक्स्ट डोर या वो तो हम कोई भी, सोते भी कर्ल्स में और उठते भी कर्ल्स में हैं। उष्णा इसको आप कभी मना नहीं करती जब आप सोती हैं कर्ल्स में और उठती हैं कर्ल्स में? नहीं, ड्रामों में, ड्रामों की बात कर रही हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे ड्रामे ऐसे किए बल्कि जिसमें मैं नहीं सोती उठती कर्ल्स में, जो मैं बड़ा उस पर ध्यान You रखती थी। insist upon it. Yeah, and I've had directors who are cool with it too. But I think in my recent one, I allowed it. I was like, and I think Hubs maybe a couple of times I allowed it because you can't, we shoot like 12 scenes a day, 10 scenes a day. Do you know how difficult it is to change hairstyles? It's not possible. And B, कभी artistic liberties ले लेते हैं। Like अगर एक लड़की आपने इतनी हसीन दिखाई है कि उस पर हीरो इतना मर रहा है, तो पता है क्या, उसके रूट्स में से ना उगते ही कर्ल्स हैं, तो बस ठीक है। उसके रूट्स में से ना उगती हॉलीवुड वेज हैं, इट्स फाइन, डील विद इट। और उसके कोई डार्क सर्कल्स नहीं है। मैंने बहुत अपने ड्रामों में भी ग्रिटी कर लिया है, मुंह धो के अपने डार्क सर्कल्स दिखाए हैं लोगों को, जो आई एम श्योर छोटे बच्चे देख के डर जाते होंगे कि क्या भूत आ गया है। कई लोगों को लगता है, मुझे एयरपोर्ट पे कोई सुबह सुबह मिलता है ना, आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप, तो उनको लगता है मुझे कोई टर्मिनल बीमारी है बिकॉज आई डोंट स्लीप एंड लाइक I don't believe that. I've never seen you with dark circles. because I concealed it. Always? Yeah, I have really bad dark Oh, circles. then you're very good at concealing I them. am. So I'm, so it's okay. We can be glamorous in dramas. They let us be pretty. Lenses में उठते हैं. हाँ, लेंस में उठते हैं, ब्लो ड्राई होता है, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों में उठते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों में ना, लेकिन मैंने, बट गिव मी क्रेडिट, मैंने बहुत सारे ड्रामों में, ज़्यादातर ड्रामों में मैंने बहुत नेचुरल अपना रखा है। हाँ, there have been times when you've completely skipped the crazy hair and makeup. थोड़ा सा तो होता है, yeah. but हाँ, I know, I remember. Yes. उष्णा, जब एक फिल्म या ड्रामा आ जाता है और वो क्रिटिसाइज होता है, और क्या पता वो क्रिटिसिज्म लेजिटिमेट भी हो, उसमें कोई बात सही भी हो, फिल्म भी हो सकती है, आपका ड्रामा भी हो सकता है, क्या आप कभी उसे डिफेंड करती हैं या कभी कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, वाकई ये ऐसा था, ये प्रॉब्लम थी इसमें? कभी कभी मैं इत्तेफाक भी करती हूँ उस क्रिटिसिज्म से, और कभी कभी नहीं भी करती। I mean it depends. अगर मुझे सही लगे एक चीज़ कि लोग सही कह रहे हैं, या अगर मुझे इफ़ आई फील द नीड कि उनको गलत फहमी हो गई है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है पीछे, तो मैं कभी कभी एक्सप्लेन कर दूंगी। बट डज दैट एक्सप्लेनेशन वर्क? आई नो दैट you often interact with people who comment. I haven't really had to explain posts. my work much. Obviously, I'm not writing the script. हर चीज़ में मेरी say नहीं है। मुझे बल्कि बहुत सारे ड्रामों में इत्तेफाक नहीं रहा जब हमने एक तो हमारे ड्रामों में एक चीज़ मुझे नहीं इतनी पसंद, लेकिन काम भी करना है, एक चीज़ को लेकर आप अपना करियर ख़त्म नहीं कर सकते, और वो ये है कि हम बहुत एम्फसाइज करते हैं कि घर नहीं तोड़ना, शादी रखनी है, जो इन द मोस्ट पार्ट आई एग्री। मेरी अभी शादी हुई है, शादी रखनी है, चलानी है, चलाने में बल्कि औरत ज़्यादा काम करती है, एंड आई एग्री विद दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के कुछ ड्रामे किए हैं जिसमें, जो मैं थोड़ा सा रिग्रेट भी करती हूँ, जिसमें हमने ब्लेटेंट अब्यूज़ दिखाया है, इन लॉज से अब्यूज़ दिखाया है, हस्बैंड से अब्यूज़ दिखाया है, और दिखाया है कि ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी इस शादी में अच्छी नहीं है, लेकिन एट द एंड, एट द ड्रॉप ऑफ द डाइम, क्योंकि वो एक सीमिंगली सब ठीक हो गए हैं, वो लड़की शादी से निकली नहीं, सबको माफ़ कर दिया। और ये मुझे चीज़ बुरी इसलिए लगती है कि मैं एक डिवोर्स्ड घर से हूँ, मेरी मदर
एक सिंगल पेरेंट थी और मेरी मदर ने 3 जॉब्स करके हम बच्चों को पाला है. मामा एडवर्टाइजिंग में भी थी, मामा रेडियो में भी थी, मामा राइटिंग में भी थी, एक्टिंग में भी थी, बीबीसी के लिए भी काम करती थी. माई मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड एंड डन नथिंग फॉर हर सेल्फ. शी इज़ द मोस्ट self-sacrificing woman I know. And there was always that mark of divorce. So when we do that, जब हम ये चीज़ कि घर नहीं टूट सकता, डिवोर्स इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक चीज़ जिसका जो अल्लाह को नापसंद है लेकिन एक हक जो अल्लाह ने औरत को दिया हुआ है, एक वजह से दिया हुआ है, जब हम ये स्टिग्मा इतना डाल देते हैं अपने कल्चर में, अपनी आर्ट में, तो वो फिर सोसाइटी में भी ट्रिकल हो जाता है कि एक तलाक याफ्ता औरत बुरी है. You know, एक सबकॉन्शियस सेटिंग में आ जाता है. दाग कहते हैं ना ड्रामे में. And it's not a दाग. मतलब women remarry. It's in our religion. It's allowed. it नापसंद चीज़ है, but it's there for a reason. ये एक हथियार है. तो ये जो stigma है ना on divorced women, I really don't like that. And I don't like कि हम हर ड्रामे में जितना भी अब्यूज़ हो, फिजिकल अब्यूज़ हो, कुछ भी हो, हम ये चीज़ दिखाते हैं कि बस घर नहीं तोड़ना और ये औरत की जिम्मेदारी है. आई एब्सोल्युटली हेट दैट, बिकॉज हम उन डिवोर्स्ड औरतों को क्या बता रहे हैं फिर. हम कह रहे हैं कि आप अच्छी औरतें नहीं हैं. हम क्या ये मैसेज दे रहे हैं. सो मेरे हाथ में अगर कभी चीज़ हो तो आई वुड रियली लाइक टू चेंज दैट. अगर मैं कभी प्रोडक्शन करूँ तो आई वुड रियली लाइक टू चेंज दैट इन सोसाइटी. हाँ, और उष्णा हैप्पीली एवर आफ्टर हमेशा एक मैरिड लाइफ नहीं होती. कुछ नहीं लोगों का होती, हैप्पीली नहीं एवर आफ्टर होती. सिंगल लाइफ Look, होती है. I'm Whatever works. alhamdulillah say so happy in my marriage. You know, I've only been married a few months and I'm you know almost a year now, and I'm really grateful. And Allah करे कि मेरी शादी मेरी मौत तक चले. Ameen. And that's what I want more than anything. But if God forbid it doesn't work out, क्या मैं आधी हो जाऊंगी? क्या मैं एज अ पर्सन इनकम्प्लीट हो जाऊंगी? क्या मेरी वैल्यू कम हो जाएगी? I would hate to think that. I would hate to think that if it ends for whatever reason, I would be an incomplete person. I am still Ushna. I am a human being who's very complete on her own. Yes. You complete yourself and then you become a whole. Nobody completes another person. You're two complete people that come together and just make a fantastic unit. And that's what I believe in. हाँ, ये हमारे ड्रामे वालों को समझ नहीं आता शायद. It's also society, because ड्रामे वालों का भी बेचारों का इतना कसूर नहीं है. वो भी वही चीज़ बनाते हैं जो सोसाइटी देखना चाहती है. क्योंकि रेटिंग्स डोंट लाई. आपकी रेटिंग्स अगर सबसे ज़्यादा उस प्रोजेक्ट की आ रही हैं तो वो स्टोरी लाइन ड्रामे वाले चलाएंगे. You know, like वही स्टोरी लाइन वो अपना फिर प्राइम प्रोजेक्ट बनाएंगे. एज एनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट तो वही होगी ना जो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है. तो लोग भी ये नहीं देख रहे. तो ये एक अजीब catch-22 इस वक्त बना हुआ है. बिल्कुल है. आई अंडरस्टैंड. इट्स द मनी ऑन द लाइन. बट यू एज एन एक्टर at this stage in your career, you're not a new actor anymore, but you're still, you're still in that lineup where you're playing the leading lady. So far, so you will be the crow's feet are coming. नहीं, Not for long. नहीं, no. मुझे सब कहते हैं कि तू अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाती हो by saying these things. हाँ, क्यों? I love it. I think you're comfortable with where you are. I'm very comfortable, yeah. हाँ, तो because you're still in that position कि you're still playing the female lead, तो बहुत बार आपके पास वो वाला रोल आएगा उस औरत का जो सारे जुल्म सहेगी और फिर अपना घर रखेगी. तो क्या आप इस पॉइंट इन योर करियर में आप कभी कहती हैं कि नहीं, मैं चलो मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए, नहीं अब्यूज़ कम कर दें, कोई चीज़ें चेंज कर दें? अब क्या वो पॉइंट आया कि आप ये आर्ग्यू करती हैं? यस. एंड अब सिर्फ मैं नहीं, आई एम सो, बिकॉज वी आर ऑल इवॉल्विंग, हम सब बड़े हो रहे हैं. मेरे मेल को स्टार्स भी उसी ट्रेजेक्टरी पे हैं. अभी हमने एक ड्रामा शूट कर रहे हैं जिसमें अदील के कैरेक्टर ने अपनी बहन को थप्पड़ मारना था जो कि मुझे लगना था, और समथिंग लाइक दैट. एंड वी ऑल टुक अ स्टैंड including the director, and we all said कि हम नहीं थप्पड़ दिखाएंगे, नहीं दिखाना, नहीं मारना थप्पड़. That's such a relief कुछ to और hear. करें, करना ही नहीं है. Enough with abuse, and forget just domestic abuse on a wife. Why should anybody raise their hands on a sister? What gives a man the power to raise their hands on their sister? It doesn't. It's wrong. You don't raise your hands on people. This abuse has been glorified so much and normalized so much that we're sick of it. So yeah, I put my foot down. अब नहीं मैं करूँगी ऐसी चीज़ें. मुझे नहीं, unless बहुत pivotal हो स्टोरी को, unless हम स्टोरी में दिखा ही रही चीज़ रहे हैं कि ये गलत है. अब हब्स में भी वो थप्पड़ था जो हमने दिखाया था जिसकी वजह से मेरी कैरेक्टर
घर छोड़ के जाती है. हमने थप्पड़ नहीं दिखाया. मैंने और मुसद्दिक ने डिसाइड किया कि हम थप्पड़ नहीं करेंगे. वो हाथ उठाएगा और वो खुद ही हाथ नीचे रख लेगा, लेकिन वो हाथ उठाने का जेस्चर इस लड़की को इतना बुरा लगेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम्हारा रिफ्लेक्स ये था कि वो घर छोड़ के चली जाएगी. और इसलिए मेरा कैरेक्टर घर छोड़ के जाता है. हाथ उठाना तो अब I'm done with it. No-go area. It's a no-go area. I'm just done with this. I'm done with it. And I've been abused so much on dramas. I'm so sick of it. I've been choked by a guy playing my father. I've been kicked by someone playing my husband. I've been slapped countless times. Why the hell am I getting beaten up? Like, why? I'm sorry, excuse me? Like, I look back at this and I think it's so ridiculous. I think it's just... नहीं, और जब बार बार दिखाते हैं तो आप उस चीज को नॉर्मलाइज करते हैं. हम नॉर्मलाइज करते हैं. It's so dangerous. It's not okay. It's not okay. I'm not saying people don't, I'm not saying that there aren't human elements to people. There are. There are human elements to me. I have lost it many times. But we're really normalizing this woman bashing nonsense, and it's just enough. No, but I'm glad to hear that it's not just you, it's not just the female actors, but also the male actors and the directors are The male actors don't want to do it anymore. So many of them don't want to do it. Absolutely. Script जिसने भी लिखी है, produce जिसने भी किया है, it is your face there on screen doing all that. You know what I am okay with? Dudes beating each other up for a girl, for her honor. Do that. Do that. Like, you fight for my honor. I'm the princess. Fight for my honor. ये कब होता है ड्रामा में? ये होता है? नहीं, फिर भी कम होता है. हब्स में हुआ है? फिर भी कम. हाँ, हब्स में हुआ है. हब्स में हुआ है? Less popular story. ये less popular story है. Compared to the in-laws beating up the girl, they love that. Yeah, the in-laws and oh my god, and then फिर like तलाक के डर से कोई डरा हुआ है, and it's just. इस हिसाब से फिल्म अच्छी है. ये वाली cookie cutter storylines at least फिल्म में नहीं होती. फिल्म में नहीं होती. लेकिन film is like people want to go there to have a laugh, to feel a lot of things. पर फिल्म कम बनती है. And do you think that in Pakistan for an actor to survive TV is absolutely compulsory for anybody, even the biggest star? Yes. है ना? Don't the biggest stars always come back to drama? Because drama is primarily what we have. A film kabhi आती है. That's true. That's true. We have a big film star in my drama Ghair that's coming up soon, inshallah. We have Babar Ali. Oh. He plays my dad. It's really cool. Yeah. So we've got Babar Bhai and Babar Ali plays a very convincing dad. He plays a very suave It's so one. crazy. He's also played my husband. And okay, so we have two very good-looking men who are salt and pepper right now, who've both played my husband and my father. We have Farhan Ali Agha and we have Babar Ali, and both of them have played my husband in something and played my dad in something, and they're both in this drama. That is so strange. That is so strange. We have a really cool senior cast. We have Wasim Abbas, we have Sawa Hamid. We just have like an ongoing list of some amazing, amazing people. Acha, Ushna, are you being more careful about what you say in public spaces now? Like Twitter? Like Twitter? Yes, because I've now, through trial and error, understood that people have a very low capacity to understand sarcasm when it comes from public figures. They will make it literal and make it sensational. I've understood the need for people to make everything sensational, anything at all. I get that there's this like hyena type drooling of the mouth, hunger for anything that they can sort of sensationalize and rip you apart with in the process. And I've also understood the lack of context when it comes to a small thing like that, because when it spreads like wildfire, people don't go beyond the headline to read the context. People just kind of see the headline and your photo, and it can change, it can kind of give them a perception of you that's not true. So I am careful in the sense because a normal person, एक आम इंसान 12 दफ़ा नहीं सोचता कोई बात करने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस टोन में वो बोल रहे हैं, वो समझ आ जाएगी और अगले बंदे में अकल है. लेकिन हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे होते हैं. हमारे लिए तो वो ढूंढ रहे होते हैं कोई चीज़ निकालना. और क्योंकि मैं एक ओपिनियनेटेड इंसान हूँ और मैं गुड़िया नहीं हूँ एक ग्लास हाउस में जो सो मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, तो मैं होती हूँ. तो मुझे तो लगता है आप अभी भी बहुत बोलती हैं. जो आपको बोलना होता है आप बोल देती हैं. बट आई थिंक यू आर नाउ वर्डिंग इट डिफरेंटली. आई एम वर्डिंग इट डिफरेंटली बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड द अदर पर्सन. I understand what I'm dealing with. I wasn't, पहले मैं benefit of the doubt देती थी
दुनिया को. अब रहने दे. अब नहीं देती. Trial and error ना. Trial I and have known you for so many years now, and I have known how your tweets have evolved. Yes. I've also grown up. You know, I've spent almost 10 years in this industry. I was a baby when I came in. So it's trial and error, but it's also growth. Your opinions also change. What I felt maybe 10 years ago is not something I might feel today. What I felt 2 months ago is maybe not something I feel today. I grow up, don't you? Don't people evolve? Their opinions change, their perception changes of the world. Bilkul. I'm a lot less aggressive. I'm a lot more accepting of the culture we're in, of the world we're in. I've changed as a woman. I'm a woman now. I'm not a girl anymore. So, and I've also grown into our culture. You have to understand, जब मैं इस industry में नई आई थी, I had just come back from Canada. I grew up in Canada. I had spent बचपन से लेके O levels तक, high school तक मैं Canada में थी. फिर मैं पाकिस्तान आई, मैंने 1.5-2 साल O levels किए, फिर मैं वापस Canada चली गई, मैंने high school किया, मैं वहाँ university गई, फिर मैं पाकिस्तान आई. So मेरे लिए एक, और जब मैंने O levels भी किए तो एक बहुत अंग्रेजी-ish स्कूल में थे उन लोगों के साथ जो बहुत बाहर के जरा बड़ी ओपन माइंडेड लिबरल बबल सोसाइटी. सो आई वाज नॉट, जिस इंडस्ट्री के लिए मैं ड्रामे बना रही थी, जो कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट मैं उनके साथ रिलेट नहीं करती थी. मैं इस कल्चर के साथ, आप उस ऑडियंस को नहीं जानती. मैं उस ऑडियंस को नहीं जानती थी, बिकॉज मैं उस ऑडियंस का हिस्सा कभी भी नहीं थी. अब भी मैं पूरी तरह से नहीं हूँ, बट अब मैं हूँ भी. You know, अब काफ़ी हद तक हूँ, but अब भी मैं, I understand it now, but I understand how they think. एक चीज़ को आप relate ही नहीं कर पाते, एक मीडिया जो आपने सारी ज़िंदगी देखा ही नहीं, जिस एक, you know, I was thrown into the worlds and I didn't really have, I threw myself into the worlds, but I didn't have much guidance on how to navigate. और जब guidance थोड़ी बहुत आती थी भी थी, तो मैं सुनती कहाँ थी? उस एज में आप कहाँ सुनते हैं? You think you know best. So now I also feel more Pakistani than I ever did before. Now I'm closer to my religion than I was before. Now I'm closer to my culture than I was before. It's just a change I've had that's been very natural. बस एक बात है, हाँ, you have evolved as a person. You've matured maybe in certain ways, but I think अभी तक what hasn't changed about you is that if you feel strongly about something, you say it. Yes. है ना? Yes. And I hope that doesn't change. That's what makes you. It depends, you. but I really need to stop feeling so strongly about so many things, because honestly, it just lands me in trouble. Like I've noticed something, and it's kind of broken my heart a little bit, that I have stood up for so many people that I didn't get along with myself, but I felt like they were being targeted, people that I had nothing to do with, and I liked that about myself, and that's landed me in a lot of trouble. But I've often found myself in situations where I've not had those people stand up for me. They'll do it privately. They'll, you know, if I'm ever in some media circus or if I'm ever down, I get a lot of private and personal messages from a lot of people with platforms. Solidarity on a public solidarity on a public platform. People don't like to get their hands dirty, whereas I've gotten my hands dirty for a lot of people. This is something I've liked about myself also, but it's also something where I've decided, you know, when you overdo it for everybody, your voice gets diluted. What is the point? Reserve it for what really, really matters. Like for me, the causes that matter are animals. They always have been. Minorities, they always have been. And I mean, among other causes, but these are the primary ones. And right now, with what's happening, the genocide that we're, you know. The genocide. Yes. So these are the causes close to my heart. They're the ones that keep me up at night. They're the ones I'll talk about. I can tell I'm that done they're with keeping you speaking up at for night people, yeah. Because रात 3 बजे एक tweet आती है, and I'm like, oh, she's thinking about. Yeah, हम सभी don't- सोच रहे हैं, actually. Yeah. वो इतना sad है. Sad is a very small word for the videos that we see and the images that we see, right? Sad does not describe it. It's not sad. So, it's there's no word anymore. You want to say devastating, you want to say heartbreaking, but there's no word. There's no word. We're watching the most Ushna, but documented. Did you ever hesitate while speaking out against the genocide? Because you've been shadow banned. I've been heavily shadow banned. मेरी कोई likes ही नहीं आती Instagram बात ये है कि आप as an actor at this stage in your career, a lot of your revenue is also dependent on Instagram. Not just that, multinational ads. Do you remember? मुझे तो वक्फे मिलते हैं. लोगों ने, याद है आपको पिछले साल एक जीतो पाकिस्तान की एक क्लिप वायरल हो गई थी कि आप वक्फे में आती हैं. वो एक्चुअली एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि एज एन एक्टर जब आप
established actor होते हैं और आप किसी brand का ambassador होते हैं, not just a sit-in, but आप ambassador होते हैं, that means आप relevant हैं. इसीलिए yes. बड़े actors का project to वक्फा ratio एक अच्छा होता है, projects कम वक्फे ज़्यादा. True. मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर चुकी हूँ वक्फे अपने career में, तो मुझे पता था कि क्या repercussions हैं, क्योंकि एक वक्फा जो एक दिन की शूट होती है वो आपके 6 महीने की ड्रामे की शूट के मुकाबिल होती है, money wise. It's a lot of revenue. This is the revenue actually. Waqfa is the revenue. So I knew what I was getting into. I knew कि shadow ban होगा. I knew कि मेरे जो बाहर काम करने के prospects थे, जो बचपन से थे, क्योंकि मैं कनाडा में पली बड़ी हूँ, तो जो मैं चीज़ देखती आ रही हूँ, obviously मेरा दिल तो वही चाहेगा मैं वहाँ काम करूँ. और अब Netflix भी पाकिस्तान में बन रहा है, अब Marvel के साथ भी एक relationship है, पाकिस्तानी बाहर भी जा रहे हैं, film festivals भी हो रहे हैं, तो अब तो gates खुल रहे थे finally. और मेरा भी प्लान था कि मैं कनाडा जाऊँ, एजेंट ढूंढूं, वो मैंने प्लान्स बदल दिए हैं. सो आई न्यू कि फिलहाल बदल दिए हैं. उष्णा क्यों प्लान्स बदले? नहीं बिकॉज इट्स रियलिटी. एक वजह है कि बहुत सारे आर्टिस्ट चीज़ें शेयर कर रहे हैं बट अप्रेसर को डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं, या बहुत कुछ डायरेक्टली नहीं कह रहे, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे अवेयरनेस के लिए. सो आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. मैं ये वर्चू सिग्नलिंग नहीं है, हर एक की अपनी ट्रैजेक्टरी होती है, जो लोग अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं. हर एक की हार्ट स्ट्रिंग्स डिफरेंट चीज़ों से टग होती हैं. यहाँ पे भी बहुत जुल्म हो रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा उस पर वोकल हैं. सो दैट्स नॉट द पॉइंट, बट दिस इज़ द डिसीजन आई मेड फॉर माई सेल्फ. I feel like this is the decision Allah made for me. This is my idea of success has changed because I've just seen so much now. Like एक तो जब हम endorsements की बात करते हैं, do I want मेरे हाथ से अगर जाएं भी तो do I want to be aligned with someone who's not brave enough to stand with me? Do I want to be aligned with a brand जिसको सालों बाद लोग कहेंगे कि ये गलत साइड पे थे हिस्ट्री के? जो ब्रांड्स मेरे साथ aligned हैं और रहेंगे, they'll be on the right side of history. उष्णा मेरी बात सुनो, लेकिन ब्रांड्स तो हर साल किसी नए सेलिब्रिटी के साथ किसी न किसी कर लेते हैं. तो तुम तो सिर्फ तो एक साल के ऐड के लिए होती है नहीं, एक साल के ऐड के नहीं, बट उस साल में आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं, नहीं आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं. दिस इज वेल्थ you're building. So it is something. But I'm just saying, do I want to be aligned with people that weren't brave enough to be on the right side? No, I don't. It's not important to me anymore. एक हम चीज़ कहते हैं कि we want a seat at their table. हम desperate हैं to be recognized उन platforms पे जहाँ minorities हम जैसी को इतनी space नहीं मिलती है. Why not build our own table? Abhi, I'm part of a project that's being shot in Turkey, inshallah, written about Saladin Ayyubi, who was a great Muslim conqueror and warrior. ये जो प्रोड्यूसर ने बनाया, जब ये प्रोजेक्ट बना था तब ये जेनोसाइड नहीं हो रही थी, मतलब अप्रेशन हो रहा था फ़लस्तीन पे, जेनोसाइड नहीं हो रही थी. और सलादीन अयूबी वो हैं जिन्होंने जेरूसलम फतह किया. सो इस वक्त वो प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम जेरूसलम की बात कर रहे हैं, मस्जिद अल-अक्सा की बात कर रहे हैं. इट्स इस्लामिक हिस्ट्री. इट्स इस्लामिक हिस्ट्री. तो जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि जो लास्ट इस्लाम पे मेजर प्रोजेक्ट बना था वो था द मैसेज, जो मोअम्मर गद्दाफी ने फंड किया था, और वो बना था 70s में. तब से लेके अब तक हमारे पे कोई चीज़ नहीं इतनी बड़े स्केल पे बनी. और क्यों नहीं बनी? वाई डोंट पीपल, जब हम इस वक्त वेस्टर्न मीडिया देखते हैं और उनका नैरेटिव देखते हैं जो उन्होंने स्प्रेड किया हुआ प्रोपेगेंडा, और हमें सालों से एज टेररिस्ट दिखा रहे हैं, हम उसको काउंटर आर्ट से करना चाहिए हमें, क्योंकि आर्ट लोग देख रहे हैं ना. सबसे बड़ा जिहाद इस वक्त मीडिया जिहाद है. सो नाउ मेरी अगर कोई ट्रजेक्टरी बन गई है, जो मेरा ज़्यादा फोकस है वो इस चीज़ पे है कि भाई मैं एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी कैनेडियन बन जाऊँ, मैं हूँ एक पाकिस्तानी औरत, मेरी स्किन ब्राउन है. मैं हूँ एक मुसलमान औरत, मैं एक लिबरल औरत हूँ, लेकिन मैं हूँ एक पाकिस्तानी औरत. ये मेरी आइडेंटिटी है, ये चीज़ कोई भी वॉश नहीं कर सकती. सो आई वॉन्ट टू शो थिंग्स अबाउट अस, अबाउट माई कल्चर. आई वॉन्ट टू किल दिस narrative of us being terrorists. People need to see what we were. लोगों को पता होना चाहिए कि जेरूसलम जब इस्लामिक उस स्टेट के नीचे था तो कितनी पीस थी. तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स कितने पीस में वहाँ रह रहे थे. जिजिया टैक्स था, बट क्योंकि यही एक आर्ग्यूमेंट आती है, but it was a very nice society which gave equal rights and practices to everybody. They don't have that right now. No. They haven't had that for 75 years. So that's my trajectory Ushna, now. were you always so passionate about representing No. Islamic history? No, I am now. I am now. ये change आया over time? Yeah, this change has come in because I've dealt with the racism. I'm sick of trying to find my space in a place because I'm not fully here nor there. I grew up there. I am Canadian, but I'm also Pakistani. I feel like
my identity has always been pulled apart, especially while I've been here. मैं यहाँ थोड़ी अंग्रेजी बोलती हूँ, मेरे accent पे लोग गालियाँ देने लग जाते हैं कि बना रही है, ये नहीं पता मैं बचपन से कनाडा में थी. But खैर, so there's been that identity crisis. But I now, with what's happening, especially with Palestine, I feel so strongly about it. And I feel so strongly about our identity. अब मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ लगी कि there is a grandfather who lost his baby girl, and उसकी dead body पकड़ के he was smiling, and and he has a dadi, and he's wearing the headgear, the Palestini headgear. और वो image कितने decade से as a terrorist दिखाई गई है Western media में. और इस एक आदमी ने वो इमेज मोहब्बत की बना दी है. This man with the beard and this. Should the West choose to look at that image and not Should the turn West, away from it? Well, it's लेकिन कितनी thanks to बार social turn away media वो करेंगे? इमेज हर जगह फैली कितनी है. बार turn away कितनी बार turn away. अब तो लोग देख रहे हैं ना what it is. So I feel like it's just a calling from God. Like I'm reading the Quran now in English because I want to understand it. I went for Umrah because of this. I just came back. You went for Umrah because of this? I went to Umrah because of this. 100% I went to Umrah because of this. I was having a discussion with somebody from the Saladin team who helped me facilitate a lot of this Umrah. And, you know, Kashif bhai said कि बेटा काबा पकड़ो और पूछो कि ये क्यों हो रहा है. So I thought कि बहुत दुआएं मांग ली हैं, awareness raise कर दी, अब मैं पूछूं कि ये क्यों हो रहा है. तो मैंने पूछा और मैंने दुआएं मांगी और मैं अब भी पूछती हूँ, because ये ऐसी चीज़ है जो आपकी faith को थोड़ा question भी कराती है. You know? या ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहे हैं अगर हम उसके लोग हैं? एक पॉइंट पे अगर जो ये कौम है जो हमारे रिलीजन से हमें दूर करना चाह रही थी, तो फ़लस्तीनियों का वो रिजॉल्व देख के कई लोग इस्लाम के और पास आ गए हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड. काफ़ी हद तक जितना मैं अपनी कैपेसिटी में समझती हूँ. आपने एक पोस्ट लगा दी जिसने पाकिस्तान का दिल जीत लिया. आपने कहा कि I enjoyed wearing the hijab. I'm still not taking it off. It's देखिए, आप कोई भी इस तरह की, एक तो मैंने एक औरत को कमेंट कर दिया था, तो मेरे सारे कमेंट्स में से ये क्यों चला गया. मैं ये नहीं कह रही मैं कल हिजाबी हो जाऊंगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कभी स्लीवलेस नहीं पहनूंगी या मैं जो अपने कपड़े कनाडा में पहनती हूँ नहीं पहनूंगी. ये एक बहुत पर्सनल चॉइस है. मैंने उम्रा पहले भी किया था, कोविड के दिनों में भी किया था, और मैंने उसकी तस्वीर 2 साल तक नहीं लगाई. बल्कि उस ट्रिप में मैंने 2 उम्रे किए माशाल्लाह से, और मैंने 2 साल तक नहीं लगाई बिकॉज लोगों को ही लगता है कि आपने अगर हिजाब पहन लिया या आप फुल स्लीव कवर हो गए तो आप एक ऑटोमेटिकली अच्छे इंसान हो गए, और अगर आपने लहंगा चोली अपनी शादी में पहन ली या स्लीवलेस पहन लिया तो आप ऑटोमेटिकली एक बुरे इंसान हो गए. You've seen both sides. I've seen both sides. मैं बहुत सारे कवर्ड लोगों को जानती हूँ जिनको मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं समझती, और मैं बहुत सारे वाइस वर्सा दूसरे किस्म के लोगों को भी जानती हूँ. आई डोंट थिंक कि आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं एक अच्छे और बुरे इंसान से होते हुए. ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक इंसान का और उनके रब का और उनके कल्चर का और उनकी परसेप्शन का सवाल है. हाँ, ये है कि आई डिड एन्जॉय वेयरिंग द हिजाब, एंड आई विल टेल यू समथिंग, आई अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी वुमेन एन्जॉय इट. देयर इज़ दिस फ्रीइंग थिंग. एक तो मुझे वो मॉडेस्ट क्लोथिंग प्यारी बहुत लगी क्योंकि उसमें एक अजीब खूबसूरती सी आपकी आती है, बिकॉज इट्स जस्ट योर फेस. दूसरा, आपका एक प्रेशर चला जाता है टू बी अ सर्टन वेट, टू हैव सर्टन एंगल्स. तीसरा, मॉडेस्ट फैशन प्यारा भी बहुत लगता है. चौथा, आपके बाल बनाने की टेंशन चली जाती है. एंड 5, आप एक अपने दीन को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं. लाइक जब मैं उसमें फिर रही थी, एक तो कुछ प्राइंग आइज़ नहीं थी जो अक्सर आपको, उसमें भी वैसे मर्द बाज नहीं आते, उसमें भी थोड़ा सा घुरूर रहे थे, लेकिन एक वो प्राइंग आइज़ बहुत कम हो जाती हैं. दूसरा, आप एक अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. और क्योंकि फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है, मेरे में एक स्पेशल नीड आ गई अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी रिप्रेजेंट करने की, टू बी अ प्राउड मुस्लिम. I think this has driven us. It's driven us कि to our आप, religion. yes, जितनी मैं अभी अपने कल्चर और रिलीजन के करीब हुई हूँ, मैं जेनोसाइड से पहले नहीं थी. ये उन्होंने किया है. सो मे बी जो ऑप्रेसर चाह रहे थे उसके ऑपोजिट हो रहा है. हम और प्राउड हैं टू बी अस. आई एम प्राउड ऑफ माई स्किन, आई एम प्राउड ऑफ माई फेथ, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम. अगर मुझे एक और मौका मिले फिर से पैदा होने का, तो आई बी बोर्न अ मुस्लिम अगैन. Like I'm and Canadian Pakistani. Drama Yes. actress. Drama actress, maybe not. Khair, you won't be born again. Yahi zindagi. It's also commendable that you did not talk about other people who were not talking about the genocide. That's not my business. I'm talking about the mega celebrities who aren't talking about the genocide. हमारे तो सारे mega stars have said something or the other. I'm talking about these
more than people who are Global silent. stars, हाँ. I'm talking about people who have signed letters against ceasefire. हाँ. मैंने उन celebrities को बिल्कुल call out किया जिन्होंने बाइडन को लेटर लिखा है कि उन ceasefire brands मत को, करें. हाँ. Brands जो इस वक्त पैलेस्टाइन का मजाक उड़ा रहे हैं, जेनोसाइड का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि अभी ज़ारा ने जो किया, जो उनकी कैंपेन है वो एक घटिया तरीन कैंपेन है. आप प्लीज़ जाके देखें जिन्होंने नहीं देखी. एंड आई हैव कॉल्ड आउट सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपना पूरा करियर ह्यूमैनिटेरियन होने पे बनाया है. You know, जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं और पीस प्राइजेस जीत रहे हैं और ये कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव इट इन देम टू कॉल आउट द ऑप्रेसर. सो व्हेन यू बिल्ट योर एंटायर स्टैंस ऑन बीइंग दिस human rights activist, and when your entire career is based on speaking for the right, and you're quiet on the most documented genocide on the planet, itni genocide living history mein, all human history में document नहीं हुई, वो बेचारे अपने डिसीज को दफना नहीं पा रहे. हम जब कोई एक बंदा हमारी फैमिली में मर जाता है तो कितनी एक सॉम्बर सिचुएशन होती है. अब इमेजिन करें हम उनके बॉडी पार्ट्स आके दुनिया को दिखाएं कि देखो हम तकलीफ में हैं, हमारी मदद करो. उनको तो वो डिग्निटी नसीब नहीं हो रही टू बैरी देयर डेड. तो हम ऐसी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं उन लोगों की जिनको डिग्निटी नसीब नहीं हो रही, जिनकी सारी मोर्निंग और डेविस्टेशन वीडियो पे है, जो अपनी मरती हुई बैटरीज और कम सिग्नल से दुनिया को ये दिखा रहे हैं. हम अगर उस पर नहीं बोल पा रहे तो आई एम सॉरी, लानत है आपकी ह्यूमन राइट्स करियर पे, और लानत है उन लोगों पे जो आपको इतना ग्लोरीफाई और वैलिडेट करते हैं उस करियर को लेके. क्यों लोग इम्प्रेस हो रहे हैं ऐसे लोगों से? आई थिंक अब बहुत से लोग एक्सपोज हो गए. अब बहुत से लोग एक्सपोज हो गए हैं, बहुत सी ब्रांड्स कंपनी सब एक्सपोज हो चुके हैं. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक इसीलिए मेरे लिए जो मेरे पहले ख्वाब थे वो मर चुके हैं, बिकॉज आई सी द वर्ल्ड फॉर व्हाट इट इज. अच्छा, अब क्या ख्वाब है उष्णा? अब What वही kind of ख्वाब. work do you want to do? I mean, obviously, I still want to do amazing projects. I want to entertain the world. I would love to have great opportunities to work anywhere. Hollywood would be great, but they won't take me now. But You never know. But my focus in life is to create projects for our people, to show our history. I feel like we should make films on the Khalifs of Islam. Why not? जो खलीफा थे हमारे, उनको हम दिखा नहीं सकते, बट मैसेज भी तो बनाई थी ना. We should make projects like Salahuddin Ayyubi. We should make projects like Khalid bin Walid, and we should make projects on our history. We should make it on our people. जैसे मौला जट, I feel like it's amazing. पूरी दुनिया को देखनी चाहिए. I feel like projects like मौला जट जो हमारे फोकलोर ही दिखा दें, हमारी फोकलोर दिखा दें, बट इंटरनेशनल स्केल पे दिखाएं हमारा कल्चर. यार आई वांट, अभी एक नकबा पे, इस जेनोसाइड से पहले फ़लस्तीन का जो 1947-1948 नकबा था, उस पर एक फिल्म बनी थी, शॉर्ट फिल्म, जो बैन हो गई क्योंकि वो हमें नहीं दिखाने देना चाह रहे. हमें बनानी चाहिए, हमें कॉलोनाइजेशन पे फिल्में बनानी चाहिए. हॉलोकास्ट पे कितनी फिल्म है, हाँ. कितनी फिल्म है. मैंने जो एक्टिंग में मैं आई, मैंने सोफीज चॉइस देख के डिसीजन उस दिन ले लिया. मुझे हमेशा से पता था, बट दैट डे आई वाज लाइक, अगर मैं इस औरत की 1000th फ्रैक्शन एक्टिंग कर लूँ तो मैं एक्ट्रेस होंगी, और उस औरत के मुकाबले में कोई भी नहीं हो सकता, मेरिल स्ट्रीप. बट मैंने भी हॉलोकास्ट फिल्म्स देखी और मैंने बहुत हॉलोकास्ट के खिलाफ बोला, बचपन से स्पीचेस करती आ रही हूँ. आई वाज वेरी क्लोज टू दैट कॉज, बिकॉज मुझे समझ नहीं आती थी ये होने कैसे दिया मैनकाइंड ने. बट अब आई फील लाइक नाउ आई सी इट हैपनिंग, ऐसे ही होने दिया. And now I feel like I want to make content on what's been happening to us. People should know कि जो 200 साल अंग्रेज़ ने हम पे राज किया, उसकी वजह से हम कितने इकोनॉमिकली डिप्राइव हो गए. मलिहा, आपको पता है कि इस वक्त कितनी औरतों को 1 out of 5 women in Pakistan have PCOS, जो मुझे भी है. मुझे PCOS की 4 से 5 किस्में होती हैं, मुझे 5 में से 4 हैं, मुझे बहुत सिवियर है. PCOS की बहुत इश्यूज़ होते हैं. बुरी डाइट, जेनेटिक होता है, यूर बोर्न विद इट, बट जो टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक ये इशू होता है, जिसमें आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाती हैं. मुझे भी है, मैं कस्प पे हूँ उसके. इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन PCOS एक एवोल्यूशनरी चीज़ है जो लोगों में आती है टू कीप देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग. खासतौर पे फैमिन के टाइम पे नेचर ने एक औरतों में बीमारी डाली कि आप रिप्रोड्यूस कम करें क्योंकि फैमिन है. Really? हमारे मुल्क में क्योंकि हमारी डाइट कॉलोनियल टाइम ने बदल दी, हम नहीं वीट खाते थे, लेकिन हमें वीट फार्मर्स बनाया, हमारी डाइट बदली, हमें फैमिन में डाला. तो अब हम इवॉल्व हो चुके हैं, और इसकी बहुत स्टडीज़ हैं जो प्लीज़ आप जाके रिसर्च करें और पढ़ें कि साउथ एशिया में ये जो हार्मोनल इश्यूज़ और डायबिटिक इश्यूज़ इवॉल्व हुए हैं वो ज़्यादातर इस वजह से हुए हैं. Oh, the root can be traced back to yes, them? It can be traced back to colonial times, not just in us, but in every place that these people have colonized. ठीक है. उसमें फिर हमारे अपने फैक्टर्स भी हैं कि हम बहुत चीनी खाते हैं, हम बहुत रोटियां खाते हैं, सो वहाँ से भी डायबिटीज़ आती हैं. We don't exercise. So there's that. जो हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं
वो इसलिए हैं because they colonized us, they ruined us. So why don't we talk about that? Why don't we talk about that? जब हम उनके मुल्कों में जाके immigrations लेते हैं, economic opportunities ढूंढते हैं, हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमें यहाँ बर्बाद करके वो भाग गए. Third world को बर्बाद ही उन्होंने किया. We should make films on that. I want to showcase that. You make those films, Ushna. Inshallah. Some really good scripts are more innovative scripts coming your way. कुछ change आया है पाकिस्तान के ड्रामा स्क्रिप्ट्स में? आप अपने पर्सपेक्टिव से बताएं. सच सच बताएं. जी बिल्कुल बिल्कुल चेंज आ रहा है, वो मेरी तरफ नहीं आ रहा. नहीं, मुझे एक दो अच्छे मज़े के स्क्रिप्ट्स मिले जो मैंने नहीं फिर किए एक्चुअली. ये बड़े मज़े का है जो मैं कर रही हूँ, बट जो बहुत इनोवेटिव चीज़ हो, जो बहुत डिफरेंट हो, मलिया वो नहीं अभी बन रही. थोड़ी बहुत बनती है बट इतनी नहीं बन रही. लाइक लड़की अभी भी आपकी वही ब्लैक एंड वाइट चीज़ है, एक बेचारी है, और अगर बेचारी है तो वो अच्छी है. आप लोगों को एक बात नहीं पता, मैं आपको एक बात बताऊँ, इतना स्मोक एंड मिरर है ना इस दुनिया में. मैंने एक दफ़ा इस बारे में ट्वीट भी किया था कि देखो, लोगों को मेरी उम्रा तस्वीर अच्छी लग गई अभी फ़िलहाल, और मेरी पैलेस्टाइन पे स्टैंस अच्छी लग गई, तो मैं सडनली फेवरेट हो गई. लोगों ने मेरी अपनी शादी शेंदी, जो एक मेहंदी थी जिस पे सब डांस कर रहे थे, मेरी अपनी शादी पे डांस होते हुए एक लीक्ड वीडियो नज़र आ गई, तो मैं एक बुरी इंसान थी. लोगों को उससे पहले मेरी किसी इसके बारे में अच्छी बात, कोई मेरी फुल कपड़ों में रमज़ान की तस्वीर अच्छी लगी तो मैं अच्छी इंसान हो गई. उससे पहले मेरी कोई जीन्स और स्लीवलेस में लग गई तो मैं बुरी इंसान हो गई. लोगों को ये ब्लैक एंड वाइट में ना लोग डालना, इट्स रियली अनहेल्थी एंड इट्स रियली 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 रॉन्ग. और यही चीज़ हमारे कैरेक्टर्स में आती है कि जो हम ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स बना देते हैं ना, कि जो हीरोइन है वो यकीनन बहुत मुश्किल उर्दू बोलती है, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो यकीनन गरीब है, वो यकीनन इतनी मस्कीन है कि वो अपने हक़ में बिल्कुल नहीं बोलती, तो वो एक ऑटोमेटिकली अच्छी इंसान है. और वो लाइट पेस्टल कलर्स पहनती है तो वो एक ऑटोमेटिकली अच्छी इंसान है. और ये सच नहीं है. मेरे में बहुत बहुत फ्लॉज हैं जो मेरे उम्रा की तस्वीर से और फ़लस्तीन स्टान से नहीं चले गए. अगर मैं बुरी थी ना तब, तो मैं अब भी बुरी हूँ, और अगर मैं अच्छी हूँ अब, तो मैं तब भी अच्छी थी. मेरा दिल वही है. इसी तरह से आई फील लाइक जब हम लीड रोल्स औरतों के रखते हैं तो औरतें मुख्तलिफ शेड्स में आती हैं. हर इंसान कम्प्लीटली बुरा और कम्प्लीटली अच्छा नहीं होता. और हाँ, कुछ इंसान जहर होते हैं, बट वो इंसान भी हो सकते हैं जो फुल स्लीव कपड़े पहन के आपको एक कम्प्लीटली और इमेज दिखा रहे हैं पीस और लव और लाइट पे. वो यकीनन अंदर से बहुत सारे उनमें से लोग रॉटन हैं जो आपको एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको अच्छे लगते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो फुल वेस्टर्न हैं लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं. तो अगर यही हम रियलिटी अपने कैरेक्टर्स में थोड़ा सा ले आएँ तो एक वर्सेटिलिटी प्ले करने को मिलेगी. अगर आप मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स में, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं अच्छे लीड रोल्स करना चाहती हूँ, मैं लीड एक्ट्रेस हूँ, शुरू से हूँ, लेकिन अगर मुझसे एक्टिंग करवानी है मज़े की तो मुझे नेगेटिव प्ले करना पड़ता है. और अगर मुझे लीड ही रहना है, नेगेटिव भी फुल ऑन नेगेटिव, और अगर मुझे, नहीं होते. मैं कोशिश करती हूँ शेड्स डालूं, बट मुश्किल होता है. और अगर मुझे अपनी लीड, एक मैंने जो अपना करियर बनाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, वो प्ले करना है, तो मुझे एक वही स्टैंडर्ड जो एक बॉक्स बना हुआ है लीड का, वो प्ले करना है. और अगर नेगेटिव प्ले करोगी तो उस पे अलग गालियां पड़ती हैं. उस पे अलग गालियां. व्हाई कैंट आई बी. आप इस पॉइंट पे लोगों की बात क्यों कर रही हैं मुझसे? आप लोगों के कमेंट्स अभी तक पढ़ रही क्यों हैं? ये मेरा आपसे सवाल है. मैं बोर होती हूँ पढ़ती हूँ. नहीं, you respond far too frequently. Sometimes. Now, has your husband or your mom, somebody, your sister ever told you कि comments को ना respond करो? I shouldn't. Sometimes I do. Sometimes I do. I don't respond that much. Very less. Like the hijab thing. But अब मैं बहुत कम respond करती हूँ. Tweets पे कभी-कभी. But my Instagram I don't, because they're generally very positive now, and एक का negative होता है कि आपके पास 150 positive comments हो, 1000 positive comment हो, एक negative हो तो एक negative बैठ जाता है. Based on what you just said about comments, क्या अब जिस उष्णा से मैं बात कर रही हूँ 6 महीने पहले के comparison में, या 5 महीने पता नहीं, have you become more thick-skinned? क्या अब कम mental breakdowns होते हैं तुम्हारे based on what people that you can't see are saying? Yes. Yeah? Yes. Have you become stronger mentally? I have become stronger. ये कैसे हुआ? I've just, I think I'm just every year I become stronger than the last. But it's also moments, right? Like I can be really strong now, but as a woman you go through certain moments where you're very vulnerable also. It can be hormones, it can be a tragedy that's happened to you, it can be different things that happen in your life. So there are moments where I'm
stronger. I'm generally becoming stronger in increments, but at the same time, I'm still human, and so I might feel a bit weaker a few months from now. I would just handle it better, but it does help to have a very comforting partner, of course. Okay, I'm glad. Yeah. I don't think that anybody should be having breakdowns based on what a couple of faceless people are saying. It's also because often when you're a bit of an empath, when you get affected by too much, sensitive, and it doesn't even have to be towards you. Sometimes I would feel too much because if it's happening to someone else as well, it just kind of gets to you. But yeah, no, you're absolutely right. And also, as the world evolves, I become so disappointed in it. You know, when I see कि जो anonymity के पीछे छुप के जब आप anonymous हो जाते हैं तो आप अपनी असलियत दिखाते हैं. दुनिया ने अपनी असलियत दिखा दी anonymous होके इंटरनेट पे. तो मैं अक्सर चीज़ें अपने बारे में भी लोगों के ऊपर पढ़ती हूँ या मैं देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि anonymity, जब आप anonymous होते हैं, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, तो आपके अंदर की चीज़ बाहर निकलती है, और वो अंदर की चीज़ कितने सारे लोगों की कितनी अगली है, ये देख के मुझे बहुत दुख होता है. दुख तो होता है, बट आपकी मेंटल स्पेस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए. It's easier said than done. जब आप टारगेट हो रहे होते हैं, और खास तौर पे जब आप कॉन्स्टेंटली, और अक्सर ये होता है कि जब आप एक हॉट टॉपिक होते हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई इवेंट हो रहा होता है या आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो उस मोमेंट में आप एक ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, तो उस मोमेंट में आपका नाम बिक रहा होता है. तब फिर ख़ास तौर पे जिस इंडस्ट्री में हम हैं, सब मिल के आपको बार 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 अटैक करते हैं, क्योंकि आपका नाम उनके पेजेस पे हिट्स ला रहा होता है, और आप फिर एक इंसान हैं, आप एंटिटी तो है नहीं. तो जब आप बार बार हर छोटी पे, आप अपनी छींक तक पे टारगेट हो रहे होते हैं, आप अपनी सांस तक पे टारगेट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा. आप मुझे बताएं, कोई भी इंसान नहीं इस चीज़ को फील करेगा? Obviously करेगा, because you feel so suffocated. Do you think that the industry should be more supportive of each other? I would really like that. I mean, there are certain portals that are now kinder or have been kind, but yeah, the industry could stand to be a little more supportive. And also the acting fraternity, not just media. The acting fraternity as well. Yeah, to stand by each other, be more vocal in their support. But they're not. But they're actually not. Like, unless it's someone that they have to benefit from, unless it's a very big star, they don't really... Or a big producer or a big director. Or a big producer or a big director. Unless you want to get in the good books of the mega star who's being targeted, I don't think anybody really cares. So it's every man for himself and it's every man for himself. Yeah, I mean, I've taken a lot of stands for a lot of people. I know, you just talked about I actually almost did for Dana Nee recently also. I almost did because I felt really bad for her. Because that happens to me. But then I wrote something and then I just took it away because I thought, why drag myself into something? You know, she probably wants it to die down. Agar main isko kuch kahungi to wo aur khich jayega, so it's better to just let it bury. You don't like that she was being bullied for something that she probably wrote with good intentions. Exactly. I don't like people being bullied. I don't really look at the context behind it. I just don't like cyberbullying. I hate it. I think it's sick. It's disgusting. Yeah. But this is the world that we live in, and this is the career that you've chosen. It's in the limelight. So inshallah, इसके perks भी हैं. Perks हैं. Yeah. And I think every year when I interview Ushna Shah, I'll interview a stronger. Yeah. Yeah. Yes. You've always been very, very, very kind from day one. I like to stand by girls. Has been, you do, and if there's somebody I can say has been absolutely hands down, complete clean slate kind, and has had not just my back but everyone's back, it's been you. I can say that, my hand to God. You above everyone. Yes, absolutely. Because you've interviewed me during tough times. You've interviewed me during some really, really, really tough times where you've picked me up as a friend also, and I really respect that. And you know, we're going to retire from these careers, and this is all gone, and I think these are the things that we're going to remember later. Are there friendships in the industry though? Can actors be friends? Yeah. They can be lots of friends. I do have a lot of friends. Yeah, actors can be friends. They just have to be on the... perfunctory friendship, or is it deeper? Yeah, from my end, it's always very natural and deep. I'm alhamdulillah, really blessed with one thing. I don't have a lot of amazing things in life. I'm not the coolest. I'm not the most popular. I'm not great in many ways. I'm not
the most intellectual. So I have many, many, many flaws that have been given to me. But one thing that I am really grateful for from Allah Mia, and I think this is my best quality, is I don't get jealous. I never compete with other women, ever, ever. You will always find me appreciating other actresses who are my What if an actress is doing a really bad job of a role that that I thought I done could better? have? So I'll say that then. And if sometimes To her I'm feeling face or on Twitter? no, on neither. I'll say it to myself. But what I'll like, there have been times where you feel a little bit of jealousy. It's natural. I wish I'd gotten that. So you say that. I mean, I've said that even. I'm feeling a bit jealous, but alhamdulillah, I'm so happy for you. MashaAllah, this is meant for your stars. And I actively make myself not be jealous. That's something I don't allow myself to have. Is it something you worked on, or is this It's just something how I've you've always had naturally, but it's also something I've made sure I've grown within myself actively. And what that's done is that from my end, it's made my friendship stronger. And the actresses who are friends with me, they know this. And I feel like they respect that about me. Because I'm always in everyone's corner. If I don't get the kind of appreciation that I give, I don't know if you've noticed, but I'm always backing people's projects. And I do get a lot of the appreciation from my friends, obviously. But the way I really like that. I think that's my best quality. Okay. So having said that, yes, I have friends because I'm able to be friends with people without competing with them, which is very easy to do in this field. It's a very human tendency. It's a very human tendency. This is the kind of industry जहाँ competition होता है. It gets सब competitive हैं भी. चले. Good luck with the premiere. Thank you. I see what you're wearing there. I'm looking forward to this movie because you've built it up in my head to such an extent. But I really hope for your sake and for the sake of Pakistani cinema. क्योंकि थोड़ी सी different भी है फिल्म है ना, थोड़ी realistic है, इतनी typical नहीं होगी शायद. So you know, नहीं typical बिल्कुल भी नहीं है, ये realistic है. For your sake, for Usman's sake, for the whole team's sake, and for the sake of Pakistani cinema. Inshallah. Chikkar storms the box office. We'll see you at the premiere. And then I'll see Ushna Shah and lots of movies after that. And not playing the bichari ladki in dramas. No, I still like bichari ladki roles. Please cast me in all the top dramas. But I love it. I take everything back. I love the bichari ladki. It's too late now, Ushna. Oh no! Thank you so much. Thank you so much.